Okay, so continuing from where we left here. So even जो गाजा अटैक था, यहाँ पे भी गाजा न्यूक्लियर ऑप्शन. So whether obviously एक हमेशा सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है. रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमने यही देखने को मिला था कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की बात की जाती है. And Russia test fires nuclear capable ballistic missile from the submarine. So cruise missile, ballistic missile में क्या basic difference है? There was again this question was there in prelims this year. And launch of this Bulava missile, the name is the Bulava missile, so it is from Russia. And then there is again a nuclear test ban treaty, NTP is there, to which India is not a signatory. Regarding West Bank, I would like to highlight some of the important points that West Bank is basically a landlocked territory near the coast of Mediterranean Sea in the Levant region. So basically Levant region is a climate geographical region on the coast of the Mediterranean Sea and in the proximity of the Western Asia. And this West Bank is formed the Palestinian territories, and since 1994 it is administered by the Palestinian Authority itself. But the overall supremacy and the control is of Israel over it, and it is bordered by Jordan and Dead Sea in the eastern side, and Israel to the south, west, and northern side. So from three sides, the Israel is covering it, and the major population which is living in it is the Arab population, and 60% of the West Bank remains under the full Israel civil and military control. So this is a little information about the West Bank. And जो capital भी है East Jerusalem, even that is also located in West Bank only. तो Israel, obviously जो of late Israel has declared कि Jerusalem would be its capital, and that has also been recognized by US also. So एक ये भी major bone of contention है. So functioning of this oil cartel, OPEC या OPEC plus आप बोले तो OPEC plus में Russia is a member, Saudi Arabia, Russia, they are going to continue the oil cuts. So already when we talk about this war also, Russia Ukraine war की आप बात करो या Israel war की, तो उसकी वजह से already disruption हो रहा है, and plus they have also decided कि production को और ज़्यादा cut किया जाएगा, तो this is going to fuel up the crude oil prices. So this becomes a cause of concern for India. सो स्पेसिफिकली अगर हम अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे रिकवरी की बात की जा रही है, पैटर्न ऑफ रिकवरी. सो रिकवरी ट्रैजेक्टरी पोस्ट पैंडेमिक K-shaped देखा गया है with those in upper wealth bracket जो हैं इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की बात करो, they are tending to do well vis-a-vis जो लो इनकम काउंटरपार्ट्स है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं K-shaped रिकवरी. ये हमने बात करी थी रियल एस्टेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी कि जो लग्जूरियस हाउसेज हैं उनकी सेल ज्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू द मिडिल एंड द लो इनकम फैमिली ग्रुप्स जो वो प्रेफर करते हैं. सो K-shaped इवन इक्विटी मार्केट्स में भी ये सिमिलर रहता है. तो मतलब K-shaped का मतलब यही होता है हायर इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस देखा जाता है, ज्यादा ग्रोथ हमें या डिमांड की आप बात करो तो हायर इनकम ग्रुप में ज्यादा देखी जाती है K-shaped रिकवरी के केस में. So household savings relative to the GDP, they are dwindling, matlab they are reducing, they are falling. Inconsistent monsoons that have also led to higher food prices, and uski wajah se bhi we can say ki jo household savings relative to GDP that is falling because of food inflation, dampened rural consumption at the same time. So obviously post COVID recovery एक challenge है, conflict West Asia में एक geopolitical external challenge है इंडिया के लिए, rupee is overvalued, depreciate हो रहा है,
and rising inflation, FIIs and foreign institutional investors की जो investments हैं they are turning more volatile, capital outflows हो रहे हैं, उसकी वजह से अलग pressure create हो रहे हैं, and obviously USA में जो bond yields हैं even they are rising. So ये multiple factors हैं जो equity market of India को impact करते हैं. Okay, Ashik, now we can take up Indian Express newspaper. Now coming to the Indian Express newspaper. Israel minister says dropping nukes on Gaza an option. Suspended indefinitely. प्रवेश आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? कि being I want to say that being in the position of power and responsibility, the minister or any other personnel should use words very precisely. ये होना चाहिए क्योंकि एक वर्ड यूज करने से कितना हार्म हो सकता है प्लीज. Yeah, because Hmm. I completely subscribe with your view, and the minister should also look into that. Even the Israeli population also do not want that Israel starts, dropping nukes in these particular cities, because that is going to affect the Israeli population, civil population also. Hmm. So फ्री मानसी, राशन. ये फ्री राशन, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि फ्री राशन फॉर 5 more years and can't let people sleep hungry. So this is a really good appreciation by the government efforts. But can we expect that after 5 years the people will not sleep hungry? No, that needs to be looked into क्योंकि obviously आप यहाँ पे specifically बात कर रहे हो, this was started after COVID-19, तो main objective यही है कि COVID-19 का जो impact हुआ है लोगों की income के ऊपर, jobs के ऊपर, और ज़्यादा informalization हो गया economy का, so उस चीज़ के लिए specifically we are having this free ration additionally. Apart from this, इससे पहले भी हम free ration provide कर रहे थे PDS scheme के under of 5 kg जो दिया जा रहा था, तो ये एक additional आप बोल सकते हैं increment benefit के लिए स्कीम रही है जो 5 साल के लिए और प्रोवाइड की जाएगी. सो ये ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन राइट है, बट इंटेंट बिहाइंड दिस स्टेप इज अ लिटिल बिट डिफरेंट है. मतलब ऑब्वियसली ये 5 साल के रहेगी, जो पीडीएस स्कीम है दैट इज स्टिल बीइंग कंटिन्यूइंग और वो आगे कंटिन्यू भी रहेगी. सो उसके बाद भी वी आर सीइंग दिस प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी, एंड स्पेसिफिकली फूड सिक्योरिटी एक हद तक हम बोल सकते हैं मीट हो चुकी है. थोड़े बहुत चैलेंजेस स्टिल रहते हैं, बट मेजर कंसर्न जो है वो अब हमारा शिफ्ट होता हुआ जो दिखाई रहा है दैट इज टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. सो वी नीड टू इंश्योर कि इसमें मुझे न्यूट्रिशनल दो चीजें बोलनी सिक्योरिटी. है, थोड़ी अनकन्वेंशनल. इसमें मुझे दो चीज बोलनी है कि एक तो क्वालिटी जो दी जाती है राशन की वो थोड़ी डिग्रेडेड होती है, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स ले. और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर होता है जो फूड डिपार्टमेंट का होता है, उसकी थोड़ी जनरल अवेयरनेस हर जो एफपीएस शॉप होती है वहां पर टोल फ्री नंबर को पूरा हाईलाइट करके दिखाया जाए, और एसएमएस के द्वारा भी लोगों के नंबर पे आए कि अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप उस टोल फ्री नंबर पे उसकी ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं. दूसरा ये कि जो भी आप राशन देते हैं वो जोग्राफिकल स्पेसिफिक थोड़ा अब होना चाहिए. मतलब इंडिया स्टेज पे है कि हम खाली गेहूं चावल की बात ना करके हम थोड़े न्यूट्रिशन की बात करें, हम तेल की भी बात करें, हम मिलेट्स की भी बात करें, हम एग की भी बात करें. सो दैट विल लीड्स टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आल्सो. ठीक है, we can move forward. Next article is talking about Niti Aayog ways discontinuing key water report launched 5 years ago. Later edition says water scarcity a national problem. तो हम लोग बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, तो उसमें वाटर स्कैर्सिटी भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉल्ड द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट. इट वाज लॉन्च्ड 5 years ago in 2018. इट ब्रॉट्स इंडियाज वाटर चैलेंजेस ऑन द स्पॉटलाइट और रैंक किया था जो भी स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ 28 पैरामीटर्स. अब है कि तो इसमें फील किया हुआ है कि नीति आयोग फील डेटा मे नॉट बी फुली एडिक्वेट, इसलिए
उन्होंने दूसरे रिपोर्ट लॉन्च किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम्म तो उसके बाद फिर दिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि पॉइंट्स आउट द वाटर स्कैसिटी इज नेशनल प्रॉब्लम, और एवरेज क्यूबिक मीटर है 1486, जो घट चुका है फ्रॉम 1545 जो 2011 में था। तो 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 75-80 क्यूबिक मीटर्स कम हुआ है। तो दिस शोकेसेस कि अगर 1100 जाता है या हाँ 101,000 के आसपास आता है तो इट इज कंसिडर एज स्कैसिटी। तो ये बात हो रहा है एवरेज का, लेकिन कुछ कुछ एरियाज हो सकते हैं इंडिया में जहाँ पर स्कैसिटी ऑलरेडी हो जाए। तो फॉर एग्जांपल गुजरात में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुआ है विथ फॉलोइंग बाय राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बेसिकली प्रवेश, इसमें जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट चाहिए और वाटर स्कैसिटी को डील करने के लिए अगर आप 5 शॉर्ट पॉइंट, मतलब स्पेसिफिक शॉर्ट अनकन्वेंशनल बताना हो तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ड्रिप इरिगेशन से एग्रीकल्चर में इरिगेशन करें, उसके बाद सोलर पंप का यूज करें, उसके बाद सोलर पंप जो इज है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो एरिया आपने बताया। पहला दो ठीक है, उसका बताइए थर्ड। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेडिशनल जो वेटलैंड्स हैं उनको एक्वीफायर उनका रिचार्ज करें। उसके बाद जो ट्यूबवेल्स, कैनाल्स और ये सब होते हैं, इनमें प्रॉपर हम जो है इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें ताकि वो पानी जो है वेस्ट ना हो फार्म्स में। और जैसे कि गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे है सुफलम सुगल जल योजना, जिसके अंडर जो है बेसिकली डीसिल्टिंग की जाती है पानी की, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ऐड और टू मोर एरियाज टू हम्म, प्रवेश। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक वाटर प्रोडक्टिविटी है, इसका टर्म को, इसको इनकरेज करना चाहिए, लोगों को तो अवेयरनेस पहुंचाना चाहिए ताकि लोग मोर एंड मोर जो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो उगाए, फॉर एग्जांपल मिलेट रादर देन शुगर के। ये पहला हो गया एस्पेक्ट। सेकंड है कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेजर से चेक डैम हो गया या फिर बांध या तान का, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। मानसी कैन। मैं यहाँ पे बस ये बोलूंगी, मतलब स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कि वाटर ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, तो जो हमारा बिहेवियर रहता है दैट लीड्स टू मोर वेस्टेज ऑफ वाटर। हम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर नॉट यूजिंग दैट। सो लॉन्ग टर्म में जो ऑब्वियसली अब स्टार्टिंग में इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट बिकम लिटिल कॉशियस। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है वाटर बैंक्स का। तो वाटर अगर आप प्राइस हम्म पे करके बाय करोगे तो वो आप उसको फिर एथिकली राइटफुल यूसेज में भी लेके आओगे, आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर वो अगेन आपके माइंड में एक ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक। तो नाउ मुझे मूविंग टू इसमें एक द। चीज़ और बोलनी है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं एग्री फार्म्स में। और जो हम बात कर रहे हैं इंडिया, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पानी के ऊपर टैक्स लगा देंगे, सो अगेन वी विल सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन द वाटर। सो या इंडिया जैसी कंट्री, ऑलरेडी प्रवेश, ऑलरेडी वाटर सेस तो है ही कुछ हाँ, कुछ जगह पे। नहीं यहाँ वाटर पर भी सेस, है, 2 रुपया देते हैं हर जगह, मतलब हाँ, वाटर आप बैंक बात कर सकते ऑलरेडी हैं यहाँ कि फंक्शन हाँ। करते हैं, हाँ। ऑलरेडी हम्म, फंक्शन और कर रहे दूसरा जो फार्मर्स होते हैं, दूसरा जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जब खर्चा देते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को आप रेगुलेट कर सकते हैं कि मतलब तरीके से दी जाए, और ताकि उनकी वाटर नीड्स पूरी हो जाए। मतलब मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, टैक्स इज, सेस तो हो सकता है लेकिन वाटर टैक्स इज नॉट गोना वर्क आउट इन इंडिया, स्पेशली इन द एग्री फार्म्स। हैं। वाटर टैक्स की सेस बात इसलिए तो कर है रहे ना, सेस तो ऑलरेडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैं। वी हैव सीन स्पाइक इन एक्सीडेंट ऑन यमुना ई वे। तो on an average, more than 34 accidents have taken place on every month on the expressway. We have already discussed कि expressway और national highway में जो एक्सीडेंट होता है इट इज़ फार ग्रेटर दैन रूरल रोड और फिर डिस्ट्रिक्ट रोड में। तो इसका जो सोल्यूशन है ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में, लेकिन अनकन्वेंशनल कुछ बोलना है उसके अलावा भी।
कौशिक, अगर एक उससे पहले हम बोले तो आप मुझे ये बताइए कि एक्सप्रेस वे में और नेशनल हाईवे में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेस वे बेसिकली उसका स्पीड लिमिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेशनल हाईवे, और एक्सप्रेस वे लेन्स ज़्यादा होता है, और एनएचआई के अंदर में एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया जाता है ताकि वहां से वहां जो कनेक्ट कनेक्ट किया जाए उसको जल्दी पहुंचा सके, बट इज बेटर क्या क्वालिटी, सब बेटर होता है एज कम्पेयर क्या टू। हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस वेज आर अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवेज? नो। हाँ बोल आप सकते बोल हैं क्योंकि नो वी उसको कांट से। रेगुलेट किया किसी, हाँ। नहीं, रेगुलेट तो नहीं नहीं एनएचआई बोल करती है, सकते। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज एक्सप्रेस वे जो होते हैं वो नेशनल हाईवे से अलग ही होते हैं। जैसे कि दादरी कुंडली एक्सप्रेस वे है, उसके बाद तो वो नेशनल हाईवे नहीं है। नेशनल हाईवे इज बेसिकली लिंकिंग द सिटीज। एक्सप्रेस वेज आर लिंकिंग द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, जैसे कि अगर आप बात करते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो मतलब सिटी के अंदर ना आए, बाहर की बाहर मतलब उनका जो है आउटफ्लो मूवमेंट हो। तो उसके ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। हम्म। सही है। आउटवर्ड मूवमेंट नहीं हो, हाँ एक पहला एक ही है। मतलब दिल्ली के अंदर ये आते ही नहीं है, तो दिल्ली के बाहर बाहर चारों तरफ जो स्टेट्स हैं वहां पर कंट्रोल जो एक्सेस इज देयर, व्हीकल कैन इंटर थ्रू अ लिमिटेड स्पेस, कैन नॉट फर्दर, होता है ना, कोई और रोड मर्ज नहीं होता उसके अंदर में, तो ये आपने बता और दिया ये बात। दूसरा दूसरा औशिक, मुझे एक चीज और भी बोलनी है कि अगर आप लेन ज्यादा नेशनल होता है हाईवे को इसमें, करते हैं तो नेशनल दूसरा हाईवे है। का जो टोल होता है वो मिनिमल होता है, और जो एक्सप्रेस वे का टोल होता है हाँ वो ज्यादा होता है, कॉस्टली होता है। और हम्म। लेन ज्यादा होता है इसमें, 6 वे और 8 सिक्स लेन लेन होती है एट एक्सप्रेस वे लेन पे, तो हाँ 8 हाँ। लेन का होता है। We have already talked about Delhi AQI index. Award for Fugitive to an Architectural Landmark. The story of Balban's Tomb. गयासुद्दीन बालबन स्लेव डायनेस्टी के पार्ट थे। तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, फिर इल्तुतमिश हो गए, रजीद सुल्तान हो गए, उसके बाद रुकुनुद्दीन हो गए, उसके बाद बालबन आते थे। बालबन का पहला जो काम था वो था कि कॉप ऑफ फोर्टिस, जो एक क्लोज ग्रुप था टर्किश नोबल्स का, उन्होंने तोड़ा, और उन्होंने शासन किया बिटवीन 1266 टू 1287। तो उन्हीं का एक टूम्ब है जो बात कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल पार्क के विजन बना हुआ था, और इट वाज बिल्ट बाय द सुल्तान हिमसेल्फ, कॉल्ड दारुल अमान, हेवन ऑफ सेफ्टी। तो उसमें कॉर्बेल्ट आर्चेस क्या होता है मानसी, अगर आप अ, से बोले तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है। एग्जैक्ट डिफरेंस मेरे को नहीं पता कॉर्बेल्ड आर्चेस और ट्रू आर्चेस के बीच में। ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐसे ट्रू आर्च वो होता है जिसमें आपका कर्व होता है, ऐसा होता है ना, जैसे आप देखते हो डोर होता है तो डोर में जो कर्व हो गया वो ट्रू आर्च हो गोलाई में गया। होता है। हाँ हाँ। लेकिन जो कॉर्बेट होता है ना, कॉर्बेट में कर्व नहीं होता है, वो एक लाइन लाइन टाइप्स होता है ओके, प्रॉपर। स्ट्रेट होती है मतलब। मतलब ट्रू आर्च अगर हाँ। नहीं, मैं आपको बेसिकली दिखा मैं दूंगा एक बताता बार। हूँ मानसी, हाँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका जो नॉर्मल आपका हिंदी में ऐसे बता वर्ड सकते होता हो, है हाँ। देखो मैं भेज देता हूँ। होती है उसको बोलते हैं कॉर्बेल्ट, और जो गोलाई में होती है जो कि मोस्टली देखा जाता है कि जो किचन हाउसेस में की जो गेट होते हैं उन वो वाले डिजाइन को बोलते हैं ट्रू आर्चेस। आर्च हो गया, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के पार्ट है। ऐसे वैसे एग्जांपल बताइए मानसी, अगर 2-3 एग्जांपल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। अम, एक तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में देर इज वन, मैं उसका नाम नहीं एग्जैक्टली। हुआतुल मॉस्क, हुआतुल मॉस्क। मॉस्क नहीं, एक गेटवे का नेम है, मतलब आर्च के लिए स्पेसिफिकली दैट इज गिवन एज एन एग्जांपल। मॉस्क नहीं है। अल्लाह दरवाजा का बात कर रहे हाँ, हो। अलाय दरवाजा, यस। हम्म। सो उसमें और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कुतुब मीनार है, हाँ। कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क हो गया। हाँ तो ये सब हो गया आपका। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया, और फिर बालबन, टूम बालबन। तो ये बताना चाह रहे थे कि कैसे इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। अबोर्ड ऑफ फ्यूजिटिव मतलब कि कुछ कुछ लोग हैं जो आते हैं वो खराब करते हैं। द स्ट्रक्चर सर्व एज अ सेंचुरी फॉर डेटर फ्यूजिटिव, ऑफरिंग डिफ्यूज टू डेट कलेक्टर एंड एंग्री परस्यूअर। तो ये बात हो रही है कि कैसे इसको हेरिटेज जो है उसको कैसे सेव किया जाए, और
तो इसको इसमें कैसे मैं प्रमोट करें? बोलूंगा उसे कि हाँ, बोलो। पहला थोड़ा हॉर्टिकल्चर इसके चारों तरफ हम कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर सैनिटेशन स्टैंडर्ड लगा सकते हैं। मॉडर्न लाइटिंग से मतलब इनकी जो अपीलिंग है वो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो टूरिस्ट ब्राउचर्स होते हैं वो हम जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि इनका और ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी और ज़्यादा इनकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो लोगों के अंदर पैदा हो। और सीसीटीवीज हो गए और प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोविजंस हो गए, ये कुछ अलग मेजर्स है जो हम कर सकते हैं। हाँ, ठीक। हाँ, ये हम लोग रिस्टोरेशन डिस्कस के कर लिए देन चुके। हाँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल इम्पोर्टेंट जाता है। हाँ, इंटैक, एक और एक इंटैक है, ट्रस्ट है, वो भी हम प्रमोट करते हैं कल्चर पार्ट को, तो वो भी इनका ये बात कर चुके हम लोग। तो फिर इंटेक जो औषिक है वो मतलब आपका जो ऑप्शन है, तो आप मुझे बताइए कि इंटेक जो है क्या एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एनजीओ है, या फिर क्या एक सोसाइटी है, क्या है ये? सोसाइटी है इंटैक। ओके, सो दिस इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और यूएन इकोसोक के कोलैबोरेशन में ये काम करती है। हाँ, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सिटी ऑफ लिटरेचर जैसे यूनेस्को को मिला, यूनेस्को ने दिया था, यूनेस्को टैग, जयपुर हाँ, है, जयपुर। लेफ्ट टैगोस ने, हाँ, तो ऐसे जयपुर हो गया या फिर हैदराबाद, अहमदाबाद हो गया, वैसे ही सिटी ऑफ लिटरेचर दिया गया कोझिकोड को। तो उसे क्या फायदा होगा तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मैंने लॉन्गर डिस्कशन। कौशिक, वाई जयपुर इज गिवन द टैग ऑफ लिटरेचर सिटी? अगर आप 2 पॉइंट बता सके इसके बारे में। आई थिंक द कंट्रीब्यूशन ऑफ द राजा जय सिंह ऑफ जयपुर towards the एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हेरिटेज एंड लिटरेचर, उसके कारण हो सकता है जयपुर को। आप बताइए ठीक है। प्रवेश। तो बेसिकली मेरे हिसाब से एक तो जयपुर के अंदर इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्ट होता है, उसको हाँ, रिकॉग्निशन उसके। करने के लिए। और जयपुर का जितना भी जो सिटी का आर्किटेक्चरल डिजाइन है, और जो वहाँ का मतलब बेसिकली जैसे कि आर्किटेक्चर की बात है, तो वो सारा भी पूरा डॉक्यूमेंटेड है, तो एक एंशियंट लिटरेचर को वो शोकेस करता है। और जिनका भी आपने नाम लिया, राजा जयसिंह, उनने भी काफी जो है लिटरेरी कंपाइलेशंस बनाई हुई है। तो बेसिकली इसके लिए, और वहाँ पर लिटरेरी मैराथन्स भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द इंटरनेशनल कंट्री पार्टिसिपेशन होता है। सो टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज एफर्ट्स, जयपुर इज गिवन द टैग ऑफ लिटरेचर सिटी। हम्म। तो इसमें एक और अच्छा एक पार्टिकल है, दिस इज टॉकिंग अबाउट टैकलिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वेयर रिक्वायर सस्टेन ग्लोबल एंड लोकल कमिटमेंट। मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे होता है, तो आ, आपका ट्यूबरकुलोसिस में, एचआईवी में है, उसके साथ साथ बाकी जगह में भी ये है। पोल्ट्री तो इंडस्ट्री में ज्यादा है। हाँ, हाँ, किससे होता है, तो पोल्ट्री से होता है या फिर हाई यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक के कारण होता है। और फिर ये दो तो मेजर कॉज है। हम्म। तो कैसे किया जा सकता है? अ प्लेस टू फैसिलिटेट इक्विटेबल एक्सेस टू इफेक्टिव अफोर्डेबल वैक्सीन थेरेपेटिक्स डायग्नोसिस इन द मिडिल इनकम कंट्री, डेवलप कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज। ये तो हो गया इसके हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसा इसमें देखना पड़ेगा कि जो बात कर रहा है अनकन्वेंशनल आइडिया। स्पेशल फोकस और सर्वेलेंस किया जाना चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट द एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इम्फेसिस ऑन द कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एनिमल, जो जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, उस पर इम्फेसिस किया जाना चाहिए। फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, कायाकल्प, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, इसको अडेयर करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अमंग द सिटीजन बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट डेंजर ऑफ ओवर यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक, ये किया जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है इसमें। इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी है इसमें, कि कैसे आप रेज कर सकते हैं विद बाकी जगह पोल्ट्री में भी, या फिर
अगर आप काऊ और कैटल को कैटल में भी डालते हैं, यूज करते हैं एंटीबायोटिक, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के अंदर में। तो कुछ और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ है इसमें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्ट जो इन्फेक्शन होता है, ये बेसिकली इसको जो इसका सोर्स रीजन है वहीं पे मतलब अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि उसे आपने बात करी पोल्ट्री की या डेयरी की, तो डेयरी में हम देखते हैं कि किस तरीके से जब जो फुट एंड माउथ डिसीज लंप डिसीज जो हो जाती है जानवरों को, उसके लिए हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं। और वही मतलब जो इन्फेक्टेड मिल्क या फिर जो वैक्सीनेटेड मिल्क होता है वही लोगों में सप्लाई होता है, तो इसका खतरा तो काफी रहता होगा। तो उस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिर? वही है, मतलब वी आर लुकिंग इनटू हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि और क्या टेक्नोलॉजिकली अगर हम। सॉल्व करना है प्रवेश, तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो मास लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें आपको एंटीबायोटिक यूज करना ही पड़ेगा। मास लेवल पोल्ट्री हो गया, मास लेवल कैटल फार्मिंग हो गया, उसमें उससे ठीक है। बिना दिक्कत हो जाएगा। लेकिन या तो ऑर्गेनिक जा सकते हो। ऑर्गेनिक पोल्ट्री भी आता है, कड़कनाथ हो गया, या बेसिक देसी ब्रीड हो गया। वैसे ही गाय का भी देसी ब्रीड है, साहिवाल से लेकर गिर एक्सेट्रा। तो मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि रेजिस्टेंस कम, आई ठीक। थिंक, एज कम्पेयर टू बाकी बात। अब ये अच्छा है कि पोषण ट्रैकर हेल्प इंप्रूव लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिशनल सर्विस। तो हम न्यूट्रिशन का हमेशा बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी से ज्यादा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी चाहिए। हम्म। तो ये क्या बात कर रहे हैं, रोल आउट ऑफ पोषण ट्रैकर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट लार्जेस्ट मोबाइल फोन न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल। तो बेसिकली गवर्नमेंट का इंडिया का है पोषण ट्रैकर। और ये क्या करता है इट, तो ये बात करता है कि 1.3 मिलियन आंगनबाड़ी वर्कर हैव डाउनलोडेड द ऐप अक्रॉस द कंट्री। और ये डेली मॉनिटर करती है आईसीडीएस सर्विस। आईसीडीएस तो पता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसके अंदर में आपका केयर भी है, इंटेंसिव इंटेंसिव प्राइमरी केयर भी है, और आप फूड पैकेट दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। तो सब इसके अंदर में होता है। तो पोषण 2.0 गाइडलाइन, पोषण 1 तो हो चुका है, पोषण 2.0 अभी है। तो पोषण ट्रैकर की मदद से पता लग सकता है कि कितना ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी है न्यूट्रिशनल सर्विस एंड लास्ट माइल ऑपरेशन। तो अभी देखा गया कि 72 मिलियन चिल्ड्रन का अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज है, देयर हाइट एंड वेट इज बिन कलेक्टेड। अब इससे पता लग सकता है कितने लोग स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, या फिर स्टंटिंग, वेस्ट, अंडर न्यूट्रिशन है, मेल नरिश्ड है। उससे एक हेल्प हो सकता है कि हम लोग टारगेटेड स्कीम्स कर सकते हैं, या फिर एनजीओ की मदद से हम लोग पहुंचा सकते हैं। उससे फिर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो डेटा है वो कम हो सकता है। मतलब उनका जो प्रोजेक्शन है ना उनका, वो एक, सही मात्रा में कर सकते हैं इसको टैकल। फर्स्ट, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स द नंबर ऑफ आंगनवाड़ी बिल्ड सेंटर्स, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। सेकेंड, नंबर ऑफ ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिशियरीज हु रिसीव टेक होम राशन और कुक्ड मील, ये भी इंक्लूड होता है। और मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन आउटकम थर्ड है। फिर रियल टाइम फीडबैक भी मिलता है फ्रॉम द फ्रंट लाइन फंक्शनरी, कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या फिर लोकल गवर्नमेंट होता है, उनको एक डेटा कलेक्शन नहीं मिलता है बाहर से, तो एक रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है पोषण ट्रैकर। तो बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं पोषण ट्रैकर का रिलेवेंस बात करें द ई गवर्नेंस, कैसे डिजिटली आप सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल चीज को टैकल कर सकते हो, उसके लिए है बेसिकली। फिर यहाँ पर डैशबोर्ड भी है आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर में, या डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग की परफॉर्मेंस, सीएम डैशबोर्ड या डीसी डैशबोर्ड, जिसमें फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान में भी एक ऑनलाइन जो साइट है उसमें भी डैशबोर्ड रहता है कि कितने लोग को टॉयलेट वहां बना। तो वैसे ही इसके लिए भी पोषण ट्रैकर के हिसाब से भी आप ऑनलाइन डैशबोर्ड दिखा सकते हैं, जिसमें कितने लोग अभी भी स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, वो दिखाया जा सके। उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है और इसके प्रशासन साथ की। और एक चीज और कर सकते हैं कि ये भी दिखा सकते हैं कि आंगनवाड़ी एफर्ट्स है कितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी, कितनी ज्यादा हाँ, वुमेन सब जो चीज कर डेथ सकते हैं होती है, बेसिकली। हाँ, हाँ देखिए, वो बढ़ी। यहाँ पर तो लिखा हुआ है। बेसिकली 360 डिग्री हाँ देता है। बोल। हम्म। तो पोषण ट्रैकर बता सकते हैं, कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि क्या बच्चे का लो हाइट फॉर एज। वेस्टिंग को कैसे याद करते हैं, तो वे डब्ल्यू से वेस्ट है और डब्ल्यू से वेट है। तो लो वेट फॉर हाइट, और उसके अलावा स्टंटिंग होगा तो स्टंट छोटा हो जाना बोलते हैं उसको, तो लो हाइट फॉर एज। तो ऐसे याद हो जाता है। फिर
पोषण ट्रैकर इज अ की टू चैलेंज द ह्यूज वेरिएबिलिटी इन मैल न्यूट्रिशन रेट। सही बात है। अब है कि पोषण ट्रैकर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो बात बात कर रहे हैं कि फीडबैक से हम लोग यूजर फ्रेंडलीनेस होता है उसको बढ़ा सकते हैं। डिजिटल डिवाइड अमंग द आंगनबाड़ी उसको भी कम कर सकते हैं। स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट दे सकते हैं, तो उससे पोषण ट्रैकर और ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव ले सकता है लॉन्ग टर्म में। तो बेसिकली ये समझ में आया ओवरऑल कि पोषण ट्रैकर को हम लोग यूज कर सकते हैं आंसर में, कि पोषण ट्रैकर ई गवर्नेंस का पार्ट भी है और कैसे एक नजिंग मैकेनिज्म भी है। आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर को भी एक हेल्प करता है। डायरेक्टली आप स्कीम पहुंचाओ और आप कलेक्ट करो रियल टाइम डेटा, और एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल मेजर से आप लोकल बॉडी या और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल कराओ। ये ओवरऑल इसका व्यू पॉइंट है। तो पोषण ट्रैकर को आप ले लेना प्रेरणा। और दूसरा औषध इसमें जैसे कि आपने बात की कि किस तरीके से और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें एक हम्म, अनकन्वेंशनल सा काम कर सकते हैं कि रेटिंग, स्टार रेटिंग मैकेनिज्म कर सकते हैं फीडबैक में कि किस तरीके की सर्विस दी जा रही है और आप रेटिंग से बताओ, ताकि वो मतलब एक सेंट्रल एजेंसी जो है जो इसको पूरे आंगनवाड़ी पोषण ट्रैक को डील करती है, जिसके अंडर में ऐप चलता है, उसके पास टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो टाइमली एक्शन ले सके। हाँ सही। मानसी, आपको कुछ कहना है ये कि और आगे तो बात कुछ नहीं करें? ऐड करना है आवश्यक। अच्छा, तो आर्टिकल हम्म, पोषण ट्रैकर हाँ। ऐप मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल डिटेल में। मेंशन हो सकते हैं उसका। लाइक वी ऑफन हाँ उसको एक आशा उसको पूरा आंगनबाड़ी कनेक्ट कर वर्कर दिया को ना पता है। पोषण ट्रैकर। हाँ। हम्म। पोषण ट्रैकर बेसिकली कनेक्ट हो गया ई गवर्नेंस से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी, लोकल गवर्नमेंट से भी, और आंगनबाड़ी और एनजीओ से भी। तो ओवरऑल को कनेक्ट करता है पूरा एक हम्म। सोशो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए हाँ, उसके। रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है हम्म, हर लेवल पे। हाँ। तो मैटरनिटी लीव फॉर women सोल्जर ऑन पार विद ऑफिसर्स। तो डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव करते हैं प्रपोजल, हाँ, ये ले चुके और हैं जो हम ले स्टार्टिंग में चुके हैं। हाँ आर्टिकल। हाँ, हो गया। स्टार्टिंग। दिस इज बीन रिपीटेड। एथिक्स पैनल टू कैसे ड्राफ्ट टुमारो। आईटी मिनिस्ट्री बैन्स महादेव ऐप। महादेव ऐप हमने बात किया था, एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और इन्फ्लुएंसिंग इन द इलेक्शन ऐप था, जिसमें बेटिंग हो रहा था, गैम्बलिंग हो रहा था। और उनका एक ईडी ने पाया कि वो भी जो फंड इकट्ठा हुआ है, कलेक्शन हुआ है, दे आर बीइंग राउटेड टुवर्ड्स द इलेक्शनरी पर्पसेस, एंड दे आर बीइंग गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टी आल्सो। तो आई थिंक ऑल दीज ऐप मस्ट बी बुक्ड, और ये हो भी रहा है, ताकि इलीगल बेटिंग ये सब नहीं। गेम ऑफ चांस इसको बोलते हैं। ये बात कर चुके 5 ईयर फ्री राशन। मीट द महाराष्ट्र मैन हु प्रपोज द आइडिया ऑफ ब्रे हार्ट्स मेमोरियल टू पीएम। तो ब्रेव हार्ट क्या हुआ? शहीद जवान स्मारक, मार्टिर्स मेमोरियल इन स्कूल अक्रॉस द कंट्री टू कमेमोरेट द sacrifices मेड बाय आर्मी जवान फॉर द नेशन। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि इससे, हाँ ये कर सकते हैं। हर एक स्कूल के अंदर में एक जवान या दो जवान के नाम के ऊपर जो उन्होंने कारगिल या 1971 वॉर, 65 वॉर, 1999 कारगिल हो गया, या 62 का हो गया, या 48 का जो भी वॉर इंडिया ने लड़ा है, और फिर टेररिज्म में वीर गति प्राप्त हुए वो जवान, उनका नाम होना चाहिए। उससे 4 to 5 एथिकल एस्पेक्ट बच्चे सीखेंगे। पहला तो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ नेशन। दूसरा कि सेल्फलेस सैक्रिफाइस वो भी सीखेंगे। तो एक ओवरऑल जो विजुअल और लर्निंग होगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रादर देन कि आप बुक में पढ़ते हो। हाँ, आप प्रवेश आपको पेट्रियोटिज्म, कुछ कहना? हाँ। डेडिकेशन एंड मोटिवेशन और ज्यादा आएगा स्टूडेंट्स में। और हम्म, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को स्कूल्स में हम क्यों बना रहे हैं, कॉलेजेस में क्यों नहीं उन्होंने सजेस्ट किया, यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं सजेस्ट किया? क्योंकि ऑब्वियसली इस एज में जो इम्पैक्ट होता है हाँ बच्चे के माइंडसेट पे वो ज्यादा ज्यादा होता है। होता है। और इस एज में और कॉलेज के बच्चे थोड़ा जानते भी कम से कम, किसी किसी के नाम तो जानते ही हैं। विक्रम बात्रा हो गए, या फिर योगेंद्र यादव नहीं, कोई एक यादव थे, उनका हो गए, बाकी सबका नाम भी। लेकिन स्कूल के बच्चे जानेंगे जल्दी तो चलो। तो छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या था? तो बेसिकली 2000 में मध्य प्रदेश से कार्व हुआ छत्तीसगढ़। उस समय बाकी स्टेट्स भी हुआ है, झारखंड फ्रॉम बिहार, उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ बॉर्न जब हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली
उसके बाद फिर अजीत योगी जोगी आए थे। उनके बाद फिर रमन सिंह एरा था 2003 से लेकर 13 तक, जब नक्सल एक्टिविटी हुआ था, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी और बाकी सब नेता को असैसिनेट किया गया था। उसके बाद ही इंडिया का इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला था अगेंस्ट द नक्सलिज्म इन 2009 से लेकर 13 18 अभी जा करके। तो नक्सलिज्म एक तरह से उनका नेगेटिव ट्रेंड है, देखा जाए तो पिछले 15-16 ईयर्स से। तो एक बेसिक अनियन प्राइस क्यों स्टिल हाई है, लोग बात कर चुके हैं। तो अगर बोला जाता है कि फूड ग्रेन को प्रोक्योरमेंट कौन करता है, तो वो एफसीआई होता है, अनियन को नाफेड, देख चुके थे। फॉलिंग फार्म स्कीम है। एक्सपोर्ट फार्म एक्सपोर्ट्स कंसर्न्स क्या क्या है, तो फिर पहली बात है कि इंडियन फार्म एक्सपोर्ट, ये तो लेते हैं। While effective bans and restriction on rice, wheat, sugar shipment are being felt in declining agriculture export, importer continuing unhindered. तो इंडिया फार्म एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो बेसिकली एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होते गया 23.62 बिलियन, और जो इम्पोर्ट है वो भी कम हो रहा है 16.4 बिलियन। तो इंडिया टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। पहला है कि मरीन प्रोडक्ट। अब मरीन प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या है प्रवेश, अगर आप, हेलो, इनलैंड फिशिंग फार्मिंग है कि ऑफ मतलब ऑनशोर है बेसिकली? इनलैंड ज्यादा होती है, और फिश फार्मिंग एंड देन क्रैब फार्मिंग। हाँ, 30% के आसपास होता है, और बाकी 70% आपका इनलैंड होता है, 30% ओशन से होता है। तो उसमें भी 7.7, हाँ 8 8 बिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली मरीन एक्सपोर्ट है। नॉन बासमती राइस 6.3, बासमती राइस 5 बिलियन डॉलर, शुगर इज 5.7। तो इसको याद करना है। हाँ, ट्रेंड की भी बात चाहिए। कर और सकते, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किस चीज का। सो मोस्टली यहाँ एंड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मोस्टली सब स्लाइट हाँ इंक्रीज ही कर रहा है, 21-22 स्लाइट इंक्रीज है स्पाइसेस में कुछ कुछ डिक्रीज जगह में। देखा गया है, बफलो मीट में डिक्रीज है, रॉ कॉटन में डिक्रीज है। सो और एक्सपोर्ट टॉप, इंडिया टॉप एग्री एक्सपोर्ट आइटम, एग्री इंपोर्ट आइटम है बेसिकली, तो वेजिटेबल ऑयल है सबसे ज्यादा, उसमें भी इंक्रीज कर रहे हैं इंपोर्ट। वेजिटेबल ऑयल में से पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। तो 20 बिलियन डॉलर। फ्रेश फ्रूट, जब हम लोग हॉर्टिकल्चर करते भी तभी हम इंपोर्ट करना पड़ता है, 2.4 बिलियन। पल्सेस भी है, स्पाइसेस भी है, तो ये सब इंपोर्ट करता है। तो प्रेरणा, यू कैन टेक अप दिस डेटा। पल्सेस प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं और इम्पोर्ट्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सप्लाई क्रंच को और ज्यादा क्रिएट करेगा और प्राइसेस और बाकी इंक्रीज हो सकते हैं। जो नाफेड है, दिस इज नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट, अंडर यस। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम्म आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ इसका प्रोक्योरमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर ये मतलब डायरेक्टली भी सेल कर सकती है खुद एज अ मतलब डायरेक्टली भी रिटेलर भी? सेल करते हैं, डायरेक्टली सेल होती है, इनके आउटलेट्स रहते हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो नाफेड है वो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर जो है वो वीट फ्लावर प्रोवाइड कराती है, अफोर्डेबल दाल प्रोवाइड कराती है, अफोर्डेबल ओनियन प्रोवाइड कराती है। सो बेसिकली इसका नाम है भारत आटा एंड ओपन मार्केट सेल स्कीम ऑफ नाफेड, जिसके अंदर जो ट्रक्स होते हैं, मिनी ट्रक्स, वो अलग अलग सिटीज में घूमते हैं और अफोर्डेबल जो है प्राइस पर लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो इट प्रोवाइड्स 27.50 पर केजी wheat flour to the consumer. So these are some little recent information regarding NAFED. थैंक यू। क्या और मतलब कि ओवरऑल इसमें जो आर्टिकल में कहना चाह रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है। तो पहला है कि डेटा डेटा इज अराउंड एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट इज अराउंड $50.2 बिलियन 2021-2 में, और अभी जाकर के 53 हुआ है।